تمام پادری انسان ہوتے ہیں، انہیں انسان سمجھے، لیکن تمام انسان پادری نہیں ہوتے۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ تمام پادری انسان ہوتے ہیں، ان کا خاندان ہوتا ہے، ان کا گھرانہ ہوتا ہے، ان کی شخصیت ہوتی ہے، ان کا عزت نفس ہوتا ہے۔ لیکن آج کل اگر ہم فیس بک پہ دیکھیں تو جب سے کرونا وائرس شروع ہوا ہے تو پادریوں کے بارے میں لکھنا، پادریوں کے خلاف لکھنا، پادریوں سے الٹے سیدھے سوال پوچھنا سٹائل بن گیا۔ اگر آپ کا پادری سے مراد صرف وہ چند پادری ہیں جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، جو لاہور میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں، پشاور میں بھی ہیں، کوئٹہ میں بھی ہیں، پورے پاکستان میں ہیں، اگر آپ کا پادری سے مراد صرف وہ چند لوگ ہیں جو شاید 1 2 3 4 یا 5 ہوں گے، تو پھر آپ لفظ پادری غلط استعمال کر رہے ہیں۔ کیونکہ میرے نزدیک پادری سے مراد وہ شخص ہے جو 84 سال کی عمر میں اپنی سائیکل نکالتا ہے اور 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر سائیکل چلا کے جاتا ہے جا کے خداوند کے کلام کی منادی کر سکے۔ وہ پادری ہے جس کے پاس آج بھی سن 2020 میں موٹر سائیکل آ گئی ہے، اور اس کے پاس موٹر سائیکل تو آ گئی لیکن اس کے پاس پیٹرول نہیں ہے موٹر سائیکل چلانے کے لیے، اس لیے وہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی اس کو لفٹ دے، کوئی کلیسیا کا شخص اس کی مدد کرے تاکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ جا کر منادی کا کام کر سکے۔ آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یہ فیس بک چلا لینا کچھ نہیں ہے، اس کے بیچ میں کچھ بھی لکھ دینا یہ پادریوں کے عزت نفس کے خلاف ہے۔ آپ پادریوں سے مانگ رہے ہیں راشن، جو پادری دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں۔ جا کے دیکھیں ان کی ویب سائٹس پہ، ان کے ٹی وی چینلز پہ دیکھیں، ان کے فیس بک پیجز پہ دیکھیں، ہر خادم جو دے سکتا ہے وہ اس وقت دے رہا ہے۔ انہوں نے آپ کو ہیلپ لائن نمبرز دیے ہوئے ہیں، ان کے دفاتر ہیں جہاں آپ جا کر لا سکتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جا کے تقسیم کر رہے ہیں۔ کس دنیا میں سو رہے ہیں آپ؟ کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ؟ باہر نکلیں اور اپنے پادریوں کو ذلیل کرنا چھوڑ دیں۔ ان کا تو گزر بسر ہمارے پر ہے، کلیسیا پر ہے۔ کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے خادموں کی مدد کرے۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ پادری چور ہیں، پادری غلط ہیں، پادری ایسے ہیں، پادری ویسے ہیں، یہ تو سٹائل ہے۔ جو کام کرتے ہیں اور تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں فیس بک پہ وہ آپ کو برے لگتے ہیں، جو کام کرتے ہی نہیں ہیں وہ بھی آپ کو برے لگتے ہیں، اور جو کام کر کے فیس بک پہ تصویریں اپلوڈ نہیں کرتے ان کو آپ کام چور کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ کام نہیں کر رہے، یہ تقسیم نہیں کر رہے۔ میں نے پچھلے دنوں لوگوں کو کہا کہ آپ اپنے پیسوں سے ماسک خریدیں، کیونکہ جب کرونا شروع ہوا تھا پاکستان میں اس کا اثر آنا تو ایک دم سے ماسک مارکیٹ سے غائب ہو گئے تھے، اور یقین مانے ایک ماسک جس کی قیمت کبھی 350 تھی اس کی قیمت بعد میں 1300 روپیہ ہوئی، اور آج اس کی قیمت 5 سے 7 ہزار روپے کی ہے، جو اچھا والا ماسک ہوتا ہے۔ آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ آپ کو سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ پاسبان جو ہیں وہ ہمارے لیے عزت کے لائق ہیں۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنے فیس بک پہ لکھا ہوا کہ اگر آپ تصویریں کھینچیں گے ہم آپ سے راشن نہیں لیں گے۔ تو میں نے سوچا، میں نے کہا دیکھو یہ ہے کون ہے، کیونکہ میں اس بندے کو نہیں جانتا، وہ میرے بہت سارے جو فیس بک فرینڈز ہیں ان میں سے کوئی ایک ہے۔ میں نے جب دیکھا تو اوپر اس نے بڑا خوبصورت ڈائلاگ لکھا ہوا تھا، لیکن جب تھوڑا سا نیچے جا کے میں نے دیکھا تو نیچے اس نے اپنے ہینڈ سینیٹائزرز تقسیم کرنے کی تصویریں اپلوڈ کی ہوئی تھی۔ 2 زبانوں والے لوگ ہیں، ہم ریاکار ہیں۔ خدا کے خادموں کا دھیان کریں، ان کا گزر اوقات کس پہ ہوتا ہے؟ ہمارے ہدیہ جات پہ ہوتا ہے۔
جو शुक्र गुजारियां लोग देते हैं उस पे होता है। पादरी बेचारा कौन सा काम करता है? जो पादरी काम करना शुरू कर देता है उससे कलीसिया को तकलीफ है। जो पादरी किसी गोरे से राब्ता कायम करता है उससे कलीसिया को तकलीफ है। लेकिन ये बात याद रखें, पादरी इंसान है, उसके जज्बात हैं, उसका घराना है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, और आप फेसबुक पे लगे होते हैं कुछ भी लिखने के लिए। नए नए टिकटॉक बना रहे हैं, तस्वीर खींचनी है तो राशन वापस ले जाओ। अरे जिन्हें राशन की जरूरत होती है वो टिकटॉक नहीं बनाते, वो राशन मांगने के लिए लाइनों में लगे होते हैं। आप लोग जो टिकटॉक बनाकर राशन मांगने वालों के लिए जरूरतमंदों का मजाक उड़ा रहे हैं, आपको पता ही नहीं। पादरियों को आपकी मदद की जरूरत है। ये टिकटॉक शिकटॉक छोड़ो, फेसबुक भी छोड़ो, अपने किसी अजीज रिश्तेदार से पूछो कि इन दिनों जब ना चर्च से हदिया मिल रहा है, ना पादरी विजिट कर सकते हैं, ना इबादत हो सकती हैं, और ना आप जैसों की तहरीक पे लोग दाई देने के लिए तैयार हैं, पादरी कैसे गुजर औकात करेंगे? एक खुदा का खादिम जाके लोगों से हाथ फैला के मांगेगा? क्योंकि चर्च तो आप मांगना शुरू हो गया पादरी से। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं, पाकिस्तान में 90% पासबान ऐसे हैं जो आज भी चर्च के हदिया जात पे और दैयकियों पे, शुक्रगुजारी पे और विजिटेशन के ऊपर जो उनको हदिया जात दिए जाते हैं उस पे गुजर औकात करते हैं। लेकिन हमारा तो स्टाइल है, पादरियों के बच्चे खराब होते हैं। कौन खराब करता है उन्हें? कलीसिया। कौन पादरियों के बच्चों को नाफरमान बनाती है? कलीसिया। कौन पादरी के बच्चों को नाफरमानी करना सिखाती है? जब बच्चा बाप से कुछ मांगता है और बाप उसे कहता है बेटे मैं ये नहीं लेके दे सकता, तो फिर कलीसिया कहती है कोई बात नहीं भाई साहब, बच्चा है, मैं ले देता हूं। और वो बच्चा सीख जाता है कि अगर बाप नहीं लेके देता तो कोई कलीसिया का रुकन लेके देगा। पादरी इंसान है, उसकी बेटी है, उसके बेटे हैं, और वो आपके बेटे और बेटियों जैसे हैं। उनके जज्बात आपके बच्चों जैसे हैं, उनके एहसासात आपके बच्चों जैसे हैं। वो फर्क तरीके से पैदा नहीं हुए, वो फर्क दुनिया से नहीं आए, वो फर्क दुनिया के लोग नहीं है। अगर पादरी के किसी बच्चे से कोई गलती हो जाए, उफ, ऐसे लगता है जैसे चर्च में धमाका हो गया। इस बात को याद रखें, तमाम पादरी इंसान होते हैं। अपने पादरियों के खिलाफ लिखना छोड़ दें। बेचारे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, रास्ते कोई नहीं, किसी के पास नहीं जा सकते। वो आपको ये नहीं कह सकते कि आप अपने पैसे हदिया जात हमें ईजी पैसा करवा दें, क्योंकि हमने तो 10 रुपये हदिया देना सीखा है, 20 रुपये सीखा है, 50 रुपये सीखा है। 100 रुपया अगर कोई हदिया देता है तो वो बहुत बड़ी बात है, और अगर कोई 5,000 दे दे तो वो पादरी साहब को ऐसे देता है जैसे उसकी पूरी नस्ल पे बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। आप जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में बैठ के सोचें, 90 to 99% पादरी ऐसे हैं जिनको आपकी जरूरत है, आपके हदिया जात की जरूरत है, आपकी शुक्रगुजारियों की जरूरत है, आपके चंदों की जरूरत है। वो कोई इतने रईस नहीं है कि जिनके घर भरे पड़े। मैं नहीं मान सकता कि कोई खुदा का खादिम हो और उसके घर में अनाज की बोरियां पड़ी हो और वो अपनी कलीसिया को भूखा सोने दे। ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए पादरियों को इंसान समझें, उनकी ज़रूरतों को समझें, उनके जज्बात को समझें। उनको कोई भी मजाक उड़ा सकता है, उन्हें कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, उन्हें कोई भी कुछ भी कह सकता है। और आज ये बात याद रखें, जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मैं पूरे वसूख के साथ पाकिस्तान के तमाम पादरियों की बात कर रहा हूं, चाहे वो कैथोलिक चर्च से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो ट्रेंड है, चाहे वो अनट्रेंड है। अरे उन 10, 15, 20, 50 लोगों को ना देखें जो यूहन्नाबाद में या बहार कॉलोनी में बैठे हुए। अरे उन्हें देखें जो कसूर के गांव में जाके खिदमत करते हैं, जिनके घरों में मैंने देखा है भूख को, जिनके घरों में मैंने देखा है कि कुछ भी नहीं है,
सच मुच आपने कुछ भी नहीं लफ्ज सुना है, मैंने लोगों के घरों में जाके देखा है। सिर्फ चारपाइयाँ, बिस्तरे और मामूली सा सामान। लाहौर के पादरियों को ना देखे, उनको देखे जो 90 to 99% है। आप सिर्फ 1-2% पादरियों को देख रहे हैं। उन पादरियों की जो गांव में खिदमत करते हैं, उनकी इज्जत करें, एहतराम करें और उनको रिस्पेक्ट दें, क्योंकि वो खिदमत कर रहे हैं। वो जाके महाज पे खड़े हुए हैं। हम तो शहरों में बैठे हुए हैं, यहां सब कुछ अवेलेबल है। हैंड सैनिटाइजर है, मास्क है। आप यहां जो चीज मांगे यहां आपको मिल जाती। अरे वहां तो पानी साफ पीने को नहीं मिलता। कहां की बात कर रहे हैं आप? पादरियों की इज्जत करें, उन्हें अपना पासबान समझें, पासबान को इज्जत देना सीखें जब वो छोटा सा है। मेरी एक आदत है जो मैंने अपने उस्तादों से ली। मैं जब पहली मर्तबा गुजरावाला सेमिनरी में डॉक्टर आर्थर जेम्स से मिला तो उन्होंने मुझे टोनी नहीं कहा, उन्होंने मुझे कहा पादरी साहब कैसे हैं। मैं FG में पढ़ाऊँ, गुजरावाला में पढ़ाऊँ या किसी छोटे से किसी बाइबल कॉलेज में पढ़ाऊँ जहाँ 10-15 लोग बैठे हैं, मैं हमेशा उन्हें पादरी साहब कहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो इज्जत के लायक है, तकरीम के लायक है, मजाक नहीं उनका उड़ाना चाहिए। वो इंसान हैं, इंसान के जज्बात होते हैं। उनका खानदान क्या सोचता होगा जब उनकी बेटियां, उनके बेटे आपके मैसेजेस पढ़ते होंगे, क्या सोचते होंगे? उनका घराना परेशान होता होगा। एक उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही और दूसरा पूरी कलीसिया जिनको उनकी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए थी, वो खुद उनसे मांग रहा है कि आप हमें दें। खुदा के लिए पादरियों को इंसान समझे और उनकी ज़रूरतों का, उनके घरानों का, उनके जज्बात का, उनकी एहसासात का ख्याल करें। उन्हें खुदा ने आपके रहनुमा बनाया है, आप उन्हें रहनुमा ही समझें। एक बंदा मुझे मिला 2 हफ्ते पहले लाहौर में और वो बड़ा परेशान था मुझे देख के, क्योंकि उसने मुझे देखा और उसने कहा भाई साहब आपका वज़न बहुत बढ़ गया है, ये गलत है, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपना वज़न कम करना चाहिए। उसने मुझे मशवरे दिए, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था उसकी बातें सुन के। उसने कहा मेरी एक बेटी है 9th में है, मैं उसकी परवरिश कर रहा हूँ ताकि वो जब मुझे कुछ हो भी जाए तो वो घर को संभाल सके। इस वाक़े के 1 हफ्ते बाद बंदा इस दुनिया से चला गया। मैं हैरान था कि 1 हफ्ता पहले मैं उसको मिला, या 1 हफ्ते से भी कम, 4-5 दिन पहले वो बंदा मुझे मिला है और संडे को उसकी डेथ हो गई। क्या मुस्तकबिल है उसकी बेटी का, क्या मुस्तकबिल है उसके खानदान का, क्या मुस्तकबिल है उसकी बीवी का? आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपको पेंशन मिलेगी, वहां से आपको इतना बड़ा प्रोविडेंट फंड और चीजें मिलती हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है। क्या करेगी उसकी फैमिली, क्या करेगा उसका खानदान? अब उन्हें तो नया पादरी चाहिए, कलीसिया नया पादरी ले आएंगे, और वो जो बच्ची है क्या मुस्तकबिल है उसके? पादरी, तमाम पादरी इंसान होते हैं, उन्हें इंसान समझे। लेकिन तमाम इंसान पादरी नहीं होते, यह भी याद रखें। आने वाली किसी वीडियो में इस पर भी मैं बात करूंगा। शुक्रिया।